हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो कि खुदावंद आज तूने फिर से हमें इकट्ठा किया कि खुदावंद हम तेरे सामने हाजिर हों। तेरा ये रहम है, ये तेरा फजल है हमारे ऊपर कि खुदावंद तू हमें मौका देता है कि हम तेरी हुजूरी में आ सके खुदावंद खुदा, ताकि तुझसे खुदावंद वो नया नया जोर, नया मसा हासिल कर सके और तेरे दिल की बातें, जो भेद की बातें हैं खुदावंद, जो तू अपने बेटियों से करना चाहता है, जो तू हमारे अंदर से वो पुरानी इंसानियत को निकालना चाहता है खुदावंद खुदा, हम तेरे हुजूर हाजिर हैं खुदावंद, अपने आप को पेश करते हैं खुदावंद, अपने बदनों को, रूह बदन जान को खुदावंद पाक रूह तेरे सुपुर्द कर देते हैं, ताकि जो भी आज कलाम का बीज बोया जाए खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेके आए खुदावंद, ताकि हम खुदावंद यीशु मसीह तेरी आमद के लिए तैयार हों, ताकि जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करने वाले हों। यस्सु के नाम से हम इस दुआ को बड़े ईमान से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हम पैदाइश की किताब पढ़ रहे हैं, उसका 30 बाब, और हमने इसका तकरीबन आधा जो चैप्टर है उस पे बात कर ली हुई है। तो आधा जो चैप्टर है, कह लें जो ब्लेसिंग का है, जो बरकतों का है, कि अम, याकूब को खुदा ने जो बरकतें दी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हमने राखल और लिया की जिंदगी के बारे में सीखा, उससे हमें क्या कह लें सबक मिलता है, तो वो हमने सीखा। आज हम याकूब की जो जिंदगी है उसके बारे में सीखेंगे कि खुदा ने उसके साथ काम किया। तो हमारे साथ रीडिंग में कौन है? हम सिस्टर मैं माया है और मैं पढ़ दूं। ओके सिस्टर ठीक है। सुरैया, सिस्टर माया जी। हम 25 वर्ष तो हाँ जी। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲॉर्ड। ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦ ਯੂਸਫ ਰਖੇਲ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲਾਬਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਟਹਿਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠਹਿਰਾ ਲੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਟਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਚਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬੀਆਂ ਤੇ ਚਿਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੀ ਤਲਬ ਲਈ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚਿਤਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਸਾਰੇ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਡੱਬੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਸਫੇਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਹੀਆਂ ਸਨ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਦ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਹਰੇ ਸਫੈਦੇ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਅਤੇ ਸਰੋਂ ਦੀਆਂ ਛਿਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਛਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਧਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਹੋਦਾਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜੜ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਜੜ ਛਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਸੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਤਿਤਲੇ ਅਤੇ ਡੱਬੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਲੇਲੇ ਅੱਡ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਲੋਹੀਆਂ ਦੀ ਵੱਲ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਜੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਇੱਜੜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਰਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜਦ ਤਕੜੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਉਹ ਛਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਛਟੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ। ਪਰ ਜਦ ਇੱਜੜ ਮਾੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਨਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਲਾਬਾਨ ਦੇ ਪੱਠੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਤਕੜੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਇੱਜੜ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਊਠ ਅਤੇ ਗਧੇ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड। ये कल हमने थोड़ी सी बात की थी कि खुदावंद ने जिस तरह कह लें कि इसराइलियों को मिस्र में से निकाला, गुलामी में से निकाला, कैद में से निकाला, उसी तरह कह लें कि जो याकूब था वो भी उसकी गुलामी कर रहा था। अपने जो मामू था उसका नौकर बना था, है ना? और उसकी भेड़ें चरा रहा था और अपनी बीवियों के लिए यानी राखल के लिए और लिया के लिए उसने वो नौकर बन गया, है ना? और चरवाहा बन गया और उसकी नौकरी की, है ना? और गुलामी में एक जैसे जो नौकर होता है, हम सबको ही पता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकता। और अगर हम इसी का यसाया 44 अभी हम पढ़ते हैं, है ना? उसमें हम देखेंगे कि जो याकूब था उसने बड़ी ही ईमानदारी से और जैसे कह लें वफादारी से, बड़ी फिक्र से जो भेड़ों की जो थी वो निगहबानी जो थी वो की थी और अपने जो मालिक था यानी लाबन था उसका मामू, उसके साथ उसने कभी दगा नहीं था किया। हमेशा ईमानदारी से उसने भेड़ों की जो थी वो निगहबानी की और कोई भी ऐसा काम नहीं किया यानी उसके खिलाफ कह लें या उसकी इजाज़त के बगैर वो उसकी फर्माबरदारी में ऐसे कह लें कि रहा वो। और जैसे कि नौकर मैं कहूँगी कि रहते हैं, है ना? वो कोशिश उनकी होती है कि हम अपने मालिक का जो है वो कहना माने। इसी तरह याकूब ने बड़ी वफादारी से, ईमानदारी से सब कुछ किया, अपने मामू के अंडर रहा और जो काम उसके ज़िम्मे था, है ना? भेड़ों की निगहबानी करना, वो उसने बड़ी ईमानदारी से किया। वो बीमार होती थी तो उनका ख़्याल रखता था या जो भी कहीं उन पे हमला हो जाता था या शेरों से या जंगली जानवरों से वो बचाता था, अपनी जान पे खेल के बचाता था, है ना? जैसा कि हम दाऊद की ज़िंदगी में भी देखते हैं कि उसने शेर और उसको रीछ को मारा अपनी भेड़ों को बचाने के लिए। तो इसी तरह याकूब भी जो था, ईमानदारी से उसने अपना जो काम था या ड्यूटी जो थी या खिदमत जो थी वो उसने की अ, अपने मामू की या अपने मालिक की जो थी, है ना? और अ, उस अ, लेकिन यानी वो एक जैसे कह लें जो उसकी एक अपनी अ, जब उसकी ड्यूटी पूरी हो गई या जो मुद्दत थी जो उसने बीवियों के लिए रखी थी, है ना? वो पूरी होगी तो उसने कहा कि मैं अ, अब अपने घर का बंदोबस्त सँभालूँ, यानी अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ करूँ। क्या मैं सारी ज़िंदगी अपने मालिक के लिए ही करता रहूँगा या फिर वो वापस अपने घर जाना चाहता है, यानी आज़ाद होना चाहता था।
खुद से, क्योंकि घर का यानी कह लें एक सरबराह था वो, तो अब वो आज़ाद होना चाहता था। लेकिन जिस तरह हम देखते हैं कि इस्राएलियों को जब मूसा छुड़ाने के लिए वहाँ गया तो फ़िरौन उसको जाने नहीं देते थे, है ना? या हमने देखा कि जब रिबका जो थी, उसको नौकर जो था वो चुनने के लिए गया और उसने चुन लिया यानी शादी के लिए, तो वो उसको लाना चाहता था, लेकिन उसके घरवालों ने उसको रोकने की कोशिश की। अ, यही लाबन जो था, है ना? और रिबका की जो माँ थी या बाप था, है ना? उसने रोकने की कोशिश की कि जब हम अपने लिए या जैसे कह लें कि अपनी खिदमत या अपना जो एक आज़ादी है वो हासिल करना चाहते हैं तो या खुदावंद में चलने की कोशिश करते हैं तो शैतान ये कभी नहीं चाहता। इसी तरह हम देखते हैं कि अब याकूब जो है आज़ाद होना चाहता है या जो वादे की सरजमीन थी वहाँ पे जाना चाहता था क्योंकि वो तो एक डर की वजह से सो अ, क्योंकि उसको मारना चाहता था उसका भाई जो था, है ना? तो वो इस वजह से यहाँ पे अ, अपने मामू के घर आया था, है ना? लेकिन अब वो वापस जाना चाहता था अपने लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो लाबन है उसको जाने नहीं दे रहा। वो कोई ना कोई ऐसा जैसे फ़िरौन आगे चल के हम देखेंगे अगर खुदावंद ने चाहा, तो जब इस्राएली निकल रहे थे तो फ़िरौन ने बड़े अ जैसे कह लें रोड़े अटकाए, बड़े उसने बहाने बनाए कि नहीं तुम अकेले चले जाओ, है ना? मर्द-मर्द जाएँ। तो जानवरों को और बीवी-बच्चों को यहीं रहने दो। उसने काफ़ी इस तरह से किया, है ना? तो बिल्कुल वही जैसे कह लें तरीका या वही जो पैटर्न है वो हमें नज़र आ रहा है कि लाबन जो है उसको जाने नहीं दे रहा, वो आज़ाद होने नहीं दे रहा याकूब को, उसके बीवी-बच्चों को, है ना? लेकिन खुदावंद की ये मर्ज़ी नहीं कि हम गुलामी में रहें। हम अ, यानी दुनियावी तौर पे या गुनाह के कह लें गुलाम जो हैं वो बने रहे, है ना? इससे खुदावंद जो जो आज़ादी हासिल करना चाहता है, जो उस ये जो गुनाह के ज़ंजीरों में हम जकड़े हुए हैं कहीं न कहीं जो भी ऐसे हम कैद हैं, खुदावंद नहीं चाहता। खुदावंद उस बंदे का साथ देता है जो उसमें से निकलना चाहता है। इसलिए हम यहाँ पे भी देखेंगे कि खुदावंद याकूब के साथ है। बरकतें भी दे रहा है उसके वसीला से लाबन को और याकूब को भी खुदावंद ने बड़ी बरकत दी, बच्चों की सूरत में, भेड़-बकरियों की सूरत में, है ना? और अ अ, बीवियाँ भी उसको मिली, है ना? खुदावंद ने हर तरीके से जो याकूब है उसको बरकत दी, है ना? लेकिन वो लाबन उसको यहाँ से निकलने नहीं दे रहा। उसने फिर से एक तरीका निकाला कि तू ना जा, तू अपनी मर्ज़ी से जो करना चाहता है, जो उजरत, जो भी तू रखना चाहता है, तू रख। अब मैं नहीं, बल्कि तू खुद मुकर्रर कर कि क्या तेरी उजरत है, कैसे मैं तुझे पे करूँ, है ना? तो उसने इस मैं कहूँगी कि बहाने से या जाल उसने जो बिछाया, है ना? और याकूब जो था, उसको फिर से ठहरना पड़ा वहाँ पे उसकी भेड़ें चराने के लिए, उसकी भेड़ों की निगहबानी करने के लिए और याकूब इस बात को उसने मान लिया, है ना? तो लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि अ, क्योंकि ये एक एक आर्ज़ी एक टेम्परेरी जो था, उसकी ये जगह थी याकूब की, याकूब कभी नहीं यहाँ पे रहना चाहता था और खुदावंद नहीं चाहता कि हम किसी की कैद में रहें, यानी ये इंसानों की नहीं बात हो रही, यानी रूहानी तौर पे कहीं हम कैद हैं, अब जो हम अ, रूहानी इस्राएल है ना? तो खुदावंद नहीं चाहता और खुदावंद यहाँ से उसे निकालेगा और खुदावंद जो है, जिस तरह यहाँ पे भी हम इस चैप्टर में देखा और
इसराइलियों का भी आपको याद होगा कि जब इसराइली वहां से निकले तो अ, जब मिस्र में से निकले तो वहां से जब निकले तो वहां से जो मिस्री थे उनसे उन्होंने जेवर उन्होंने जो सामान था कीमती उनसे ले लिया था और खुदावन ने उनके दिलों को तैयार किया। उन्होंने कहा यानी उनको इज्जत बख्शी इसराइलियों को। जब वहां से निकले तो खुदावन ने उनको इज्जत जो थी वो बख्शी और जो मिस्री थे उन्होंने वो अपना जो जेवर थे अपनी जो चीजें थी वो उनको दे दी इसराइलियों को, है ना? तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि याकूब जब वहां से निकलेगा या निकल भी है तो खुदावन ने उसको बड़ी बरकत दी। खुदावन ने उसकी भेड़ों को जो कि उस वक्त दौलत होती थी, है ना, उसने उसकी दौलत को ये भेड़ बकरियों को बहुत जो था वो बढ़ा दिया। बड़ा अमीर जो था ये याकूब जो था वो बन गया। उसके बाद बड़े नौकर चौकर लौंडियां और भेड़ बकरियां थी, सब कुछ था उसके पास, याकूब के पास। तो इसी तरह यानी मिस्री जब इसराइली वहां से निकले थे गुलामी में से तो खुदावन ने उनको इज्जत दी थी। यहाँ पे भी हम यही एक तरीका देखते हैं कि खुदावन ने याकूब को इज्जत बख्शी जब वहां से निकाला उसकी कैद में से, लाबन की कैद में से, है ना। और हम शुरू से देख रहे हैं कि इब्राहिम की और इसहाक की और अब याकूब की जो जिंदगी है या इसमें हमें खुदाम यीशु मसीह की वो जो खूबियां हैं हमने देखा, पीछे भी थोड़ा सीखा, है ना, कि वो नजर आ रहा है। जैसे ये चरवाहा है और अपनी भेड़ों की फिक्र करता है, हमारा खुदाम यीशु मसीह भी चरवाहा है वो और अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। और यहाँ पे जब इसने अ, जब लाबन से सारी बातचीत होगी तो इसने क्या किया कि इसने कहा कि मैं तुम्हें तेरी भेड़ें जो हैं वो चराऊंगा। और इसने जाके सारी भेड़ों के गिर्द जो है कह लें चक्कर लगाया और उसने भेड़ों को चुना, अपने लिए अलग कर लिया कि ये जो जो 31 आयत है ना, कि तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ें चितरी और कल और काली हों ये ही एक जो एक तरीका है हम देखते हैं मुकाशवा की किताब और जहाँ पे खुदाम यीशु मसीह जो हैं 7 चर्चेस के बारे में हम सीखते हैं कि खुदावंद क्या है। खुदाम यीशु मसीह वो सारे जो 7 चर्च है उसमें क्या करता है, फिरता है और जिस जगह कोई कमी है, कोई चिरागदान, है ना, सबका जायजा ले रहा है, सबकी निगहबानी कर रहा है, सबको संभाल रहे हैं। इसी तरह हम देख रहे हैं कि जो याकूब है वो भेड़ बकरियों के क्या करता है, वो गिर्द चक्कर लगाता है और उनको चुनता है या उनकी निगहबानी करता है। जहाँ पे भी जो किसी की जरूरत है या कोई कमी है, जैसे पहले ही जो चर्च है उसमें हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई है ना। और खुदावन ने कहा कि खुदावन यीशु मसीह ने कि अगर तुम अ, अ, हम यानी नीम गरम है ना, गरम है और ना ठंडे, नीम गरम है तो खुदावंद हमें अपने मुंह से निकाल फेंकेगा। इसी तरह ये सारा जो ये आज जो हमने चैप्टर का हिस्सा पढ़ा है उसमें हम देखेंगे कि उसने दुबली पतली भेड़ों को अपने लिए नहीं रखा, जो जो आगे नहीं बढ़ती, जो जिनकी मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ गई हुई है, खुदावंद उनको अपनी उसमें से निकाल देता है, मुंह में से कह ले निकाल देता है या उनका चिराग जो है बुझा देता है। यही हम याकूब के इसमें पैटर्न में देख रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहा है, भेड़ बकरियों को किन को उसने चुना, जिनके ऊपर दाग थे, जिनके ऊपर धब्बे थे। ये देखें, है ना, ये सफेद वाली जो हैं
ये लाबन की हैं, और जिनके ऊपर दाग धब्बे हैं, वो लाइनें जैसी हैं, वो सब यकूब की हैं। सब कौन सी भेड़ बकरियां या सारे जो जानवर थे सभी, ऊंट और सब कुछ किन को यकूब ने चुना, जिनके ऊपर दाग थे धब्बे थे, है ना, वो यकूब की भेड़ें थी। जो धारीदार थी, जिनके ऊपर धब्बे थे या ब्राउन थी, या है ना, जो सफेद थी, वो लाबन की थी। तो खुदावन याकूब ने उनको चुना। खुदावन यीशु मसीह ने भी ऐसी, जिनमें हम में ऐब है, हम लंगड़े हैं, यानी अंधे हैं, रूहानी तौर पे बात कर रही हूँ, है ना, जिनके ऊपर दाग हैं धब्बे हैं, खुदावन ने उनको चुना ताकि क्या करे, खुदावंद उनकी उनको नया बना दे, या उनकी रूहों को जो है वो बचा दे, उनको बचाए। खुदावंद ने हम सबको, या रद्द किए हुए, या जो मुर्दा जिंदगी गुजार रहे थे, खुदावन यीशु मसीह ने उनको निकाला, जो कमजोर थे। या हमें मेरा हाल ग्रंथियों के खत में है ना, कि उन बेवकूफों को, रद्द किए हुओं को चुन लिया। इसी तरह याकूब ने देखे उन सारी काली भेड़ों को, भेड़ बकरियों को, जो जिनके ऊपर दाग थे धब्बे थे, खुदावंद ने भी उनको चुना, और याकूब ने भी उन सब भेड़ बकरियों को चुन लिया, उनको अपने लिए अलग कर लिया, ताकि क्या करे, उनकी एक जैसे फितरत, जो उनकी नेचर जो है, उनको तब्दील कर दे, उनको नई मखलूक जैसे हम बन जाते हैं रूहानी तौर पे, जब हम मसीह में आ जाते हैं, तो इसी तरह उसने याकूब ने ये सब कुछ किया। जैसे जैसे वो कर रहा है, हमें इसमें थोड़ा सा नजर आ रहा है कि जैसे जो कुछ भी उसने ये भेड़ बकरियों के लिए, वो जो एक इस तरह कह लें, जो छड़ियां बनाई दरख्त की डालियों की, और उनको छील छील के, ये सफेदा बादाम उर्दू में ये लिखा हुआ है, और चिनार की जो हरी हरी छड़ियां थी, उसको उसने छील छील कर, इस तरह जैसे जहाँ पे भेड़ बकरियां पानी पीने के लिए आती थी, उसने वहां पे उनको गाड़ दिया। तो ये अ, जो जैसे कह लें, जो बादाम है, या हरी हरी जो डंडियां हैं, ये जब याकूब ने जहाँ पे भेड़ें जो थी, सारी भेड़ बकरियां नहीं, यानी सारी जो नहीं, जो गाबन यहाँ पे उर्दू में लिखा हुआ है, और यानी जैसे वो जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, और पंजाबी में क्या लिखा हुआ है अंजना, कि जब वो 38 वर्ष में लिखा हुआ है ना, जी कि जब वो पानी पीने आई तो सो गाबन हो गई। अ, एक मिनट बस, ले- 38 बस। हाँ हाँ, उसका हाँ, लास्ट उसका नाम। हिस्सा। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਸੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। आज से लगन लग गई। ओके। ਹਾਂਜੀ, पता नहीं अच्छा। मतलब ਇਹਦਾ। हाँ, जब वो यानी क्या कहते हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, है ना, गाबन हो जाती हैं, और कोई अगर किसी के पास लफ्ज है पंजाबी में या हिंदी में तो बता सकता है ना। तो जब वो हो जाती थी उनको, नਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ उन ਗਈਆਂ, हाँ जी। ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ हो गई आंटी कहते ਹਾਂਜੀ, ओके मम्मी भी दादी अच्छा कहते। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ਹਾਂਜੀ। जी। तो तब जो है वो उनके जहाँ पे पानी पीती थी, जो वो बने हुए थे, कह लें हौज जैसे, तो उनके इर्द गिर्द इस तरह जैसे कह लें कि छड़ियां जो थी वो लगा देता था, छील छील के उसका, जैसे कह लें सफेद सफेद जो एक गूदा जैसा कह लें, जब निकल आता है ना, तो वो खड़ी कर दिया करता था। और उसके ऊपर जैसे अम, भेड़ बकरियां जो थी, जब वो पानी पीने आती थी तो वो उसको देखती थी,
और जो बादाम है, अगर हम सबको अगर याद हो, तो ये यानी ये किसकी है? सफेदे की, जो दरख्त है उसकी छड़ियाँ, बादाम की और चिनार का जो दरख्त होता है ना? तो उसकी छड़ियाँ, ये 3 किस्म के जो कह लें दरख्त और उनकी छड़ियाँ उसने बनाई थी याकूब ने, है ना? तो वो उसके गिर्द जो थी, जहाँ पे वो पानी पीती थी, ऐसे बेड़े जैसे कह लें, तो छड़ियाँ इस तरह शायद आपको थोड़ा-सा नज़र हो, तो वो उनके ऊपर भी धारियाँ जैसी बनी होती थी। आपको शायद नज़र आ रहा हो, है ना? तो इस तरह धारी जैसी या डब्बे जैसे जैसे कलें बने होते थे। उसने जो छड़ियाँ थी इस तरह बनाई और उनको एक जैसे कह लें ये हथियार भी हम कह सकते हैं, इसको छड़ी भी, लाठी भी और बादाम जो है ये एक किस्म इसकी जो ये रूहानी जो मतलब है वो मैं बता रही हूँ, है ना? कि ये जो है कहानत को या जिस तरह आप सबको याद होगा, हम ये एक हवाला जो है वो पढ़ लेते हैं कि जिसमें हमें पता चलता है कि जो अ, सॉरी एकदम मेरे ज़हन ਉਹ ਫੁੱਲ निकले ही सीगे ਉਹ वाला हाँ, हवाला। हाँ, फूल निकले थे, हाँ, गिनती की किताब और उसके 17 बाब है और उसकी जी। आयत मुझे भूल गई है, हाँ। गिनती की किताब 17 बाब, तो उसके फूल निकल आए थे। गिनती 17 बाब उसकी 8 आयत, है ना? तो इसलिए ये बादाम जो है, ये एक तो हिकमत को भी पेश करता है और ये कहानत को पेश करता है। तो उसने ये लाठियाँ जो थी या छड़ियाँ जो थी वहाँ पे लगाई, जहाँ पे वो पानी पीती थी। मिला? अ, मिल गया, हाँ जी, बाजी पढ़ूँ? हाँ, गिनती 17 बाब उसकी 8 आयत। जी। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਸਾਖੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ, ਹਾਰੂਨ ਦਾ ਲਾਠੀ ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਮਲੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਦਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। हाँ ਆਮੀਨ। जी, तो ये जब दूसरे लावियों का जो ख़ानदान थे उन्होंने कल जैसे मेरा हाल एक हवाला हमने ये 16 चैप्टर उसी के है कि कोरा का जो ख़ानदान था, वो आ गया था कि हम भी ये कहानत का जो है जो कुर्बानियाँ चढ़ाते हैं, जो हारून चढ़ाता था, हारून काहिन और उससे वो वाली खिदमत भी लेना चाहते थे। जैसे हमने देखा कि जो अ, लिया थी उसने राखल से जब वो क्या कहते हैं वो बूटी जैसी वो जो अ, था वो लिया, तो उसने लिया ने कहा कि तूने मेरा शौहर ले लिया और अब ये भी मेरे से लेना चाहती है जो मेरे बेटे को मिला है ना? तो ये क्या ये छोटी बात है ना? तो इसी तरह जब इन्होंने ये कहानत की खिदमत लेनी चाही जो कोरा का ख़ानदान थे हारून काहिन से तो तब खुदावंद ने जो हारून काहिन था, उसकी लाठी पे वो सारे हम स्टोरी नहीं देखेंगे कि सबकी लाठियाँ रखी थी, लेकिन खुदावंद ने जो थी, वो हारून काहिन की जो लाठी थी जो चुनी और उस पे जो फूल थे, जो शगुफ़े थे और पक्के बादाम जो थे वो निकलना शुरू हो गए थे। तो ये कहानत को भी एक किस्म का कह लें पेश करता है, ये बादाम जो है। तो इसलिए खुदावंद जो है या उस वक़्त याकूब ने यानी इस खिदमत के लिए कह लें या ये वाला मसा कह लें ये इसकी लाठी जो है वो वहाँ पे लगाई और जो चिनार था जो ये घने दरख्त हैं और इसकी भी लाठियाँ वहाँ पे लगाई जो कि जिसका मतलब है कि खुदावंद देखता है, खुदावंद सब कुछ देख रहा है ना? जो चिनार का दरख्त है उसकी और जो पीपल का क्या वो दरख्त था ग्रीन, हरा, तो उसके मीनिंग थे रूहानी तौर पे अगर हम देखें कि खुदावंद जो है वो देख रहा है ना? और जो छड़ी है वो पेश करती है हमें सबको ही पता है ना कि एक तो वो इख्तियार को पेश करती है, ताकत को, हमारी हिफाज़त के लिए या एक हथियार है हर दुश्मन के हमले से बचाने के लिए खुदावंद
हमारे आगे आगे चलता है और दुश्मनों को ख़त्म करता है, या खुदावंद के लोगों में इत्तेहाद या मेल मिलाप या यूनिटी रखने के लिए भी, रहनुमाई करने के लिए, या खुदावंद की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए ये छड़ी या लाठी जो है ये उसको पेश करती है ना। और आसा जो होता है वो भेड़ों की हिफाजत के लिए, लेकिन छड़ी जो है वो दो तरह से, यानी कह लें वो खुदावंद के कहर को भी पेश करती है। ये एक हथियार है, लोहे के आसे का जिक्र हमें मिलता है यानी यकूब ज़बूर की किताब में, है ना, और मुकाशफा की किताब में भी, कि खुदावंद क्या है, लोहे के आसे से हुकूमत करेगा, है ना। तो ये कलाम की सच्चाइयों को पेश करता है, यानी खुदावंद के हुक्मों पे, जो सच्चा खुदावंद का कलाम है उस पे अमल करने को पेश करता है। यानी छड़ी खुदावंद जो है इस्तेमाल करता है। खुरूज 17 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है कि खुदावंद की लाठी, यानी खुदावंद अपने लोगों को कह लें ठीक करने के लिए वो लाठी भी इस्तेमाल करता है ना। तो इसलिए ये छड़ियाँ जो थी, ये कह लें उसने इर्द-गिर्द जहाँ पे ये पानी पीती थी, जो भेड़-बकरियाँ, सारे जानवर जो थे, वहाँ पे वो तब लगा देता था जब वो गाभिन हो जाती थी, है ना? वो तब उनके चगिर्द लगाता था उस पानी के, यानी एक बाड़ जैसी जो है वो लगा देता था, ताकि वो जब पानी पिएं तो साथ साथ तो उनको भी देखें। और अगर साइंसी उसमें से थोड़ा सा देखें तो ये जो लाठियां जब वो उसके किनारों पे कह लें वो लगा दिया करता था, तो वो उसका एक जैसे कह लें ऑयल या लिक्विड जैसा जो था, वो भी पानी में शामिल हो जाता था। तो वो पानी जो है, वो भी समझो कि एक दवाई या एक पाक, जैसे अगर हम कहें कि खुदा यीशु मसीह का लहू जो है, वो हमें अ उसमें शामिल हो जाता था, वो पाक और साफ करने के, या उस तरह से हमें बनाने के लिए, हमारी नेचर को, हमारी फितरत को तब्दील करने के लिए, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं में बदल दिया था, इसी तरह ये हमारे अ, अंदर जो पुरानी हमारी फितरत है, उसको निकालने के लिए ये एक याकूब ने अ, एक जो तरीका है वो इस्तेमाल किया, और अपनी भेड़ों के लिए, ताकि वो जब देखती रहें उसको, ये छड़ी जैसे एक कह लें डब्बे या धारीदार है, तो वो उस उन पे असर हो। यानी वो जब देखती हैं, जैसे हमें भी कहा गया है कि हम क्या करें, खुदा यीशु मसीह की तरफ तकते रहें, ताकि क्या बने, उसकी तरह हम बनते जाएं, खुदा यीशु मसीह की मानिंद बनते जाएं। तो ये एक एक कह लें तरीका जो याकूब ने चुना, और ये खुद से उसने नहीं चुना, ये खुद से नहीं उसने चुना। ये अगर हम अगला चैप्टर जो है 31 बाब, पैदाइश 31 बाब उसकी 8 और से 12 आयत तक पढ़ें, तो ये खुदावंद ने ख्वाब में उसको दिखाया था कि जो बकरियां हैं, जो बकरे हैं, या जो भी ये कुछ हुआ है, जिस तरह हम कहें कि खुदावंद ने जब भेद या एक मुकाशफा जो था वो पतरस के ऊपर खोला था कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है ना। और ये खुद से नहीं हुआ, यानी क्या कहते हैं, पतरस ने खुद से नहीं बोला था, ये आसमान से या खुदावंद ने उसके ऊपर ये भेद जो था वो खोला था। इसी तरह याकूब ने ये जो कुछ किया, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने भेड़ों को बचाने के लिए या उनकी फितरत को तब्दील करने के लिए, या कह लें डीएनए उनका तब्दील करने के लिए, कि वो सफेद ना हो, वो धारीदार हों या धब्बे जिनके ऊपर हों, उसने ये सारा तरीका जो था वो चुना। अ, हम पढ़ते हैं Want पैदाइश me to tell her? 31। हाँ जी, पैदाइश की किताब 31 बाब उसका 8 से 12 आयत। जी कोई पढ़े? जी, जी अंजना। हाँ जी, हाँ जी। 8 वर्ष तो 12 तक। जी। हाँ जी।
ਰਾਖਲ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘੋਲਾ ਵਰਗਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਫਤਾਲੀ ਰੱਖਿਆ। नहीं, 8 31 ਸੌਰੀ बाब उसकी ਸੌਰੀ 8। ਜੇ ਉਸਨੇ ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਿਤਲੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਨੇ ਚਿਤਲੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਦਰੇ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਜੜ ਨੇ ਗਦਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਡੰਗਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਜੜ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰ ਇੱਜੜ ਉੱਪਰ ਟੱਪਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਚਿਤਲੇ ਅਤੇ ਚਿਤਕਬਰੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਕੂਬ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਪਦੇ ਸਨ, ਗਦਰੇ ਅਤੇ ਚਿਤਲੇ ਅਤੇ ਚਿਤਕਬਰੇਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਬਾਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸਭ ਡਿੱਠਾ ਹੈ। हाँ जी, ਆਮੀਨ। तो ये खुदावंद ने ही याकूब को एक, जैसे कह लें, एक समझ जो थी या एक भेद जो था वो पहले ही खोल दिया था। तो जो कुछ वो यहाँ पे कर रहा था, एक किस्म का खुदावंद ने ख्वाब में उसको बता दिया था, दिखा दिया था कि इस तरह से होगा। और जो भी ज्यादती, जो भी धोखा जो है कह लें याकूब को वो दे रहा था लाबन, खुदावंद वो देख रहा था। खुदावंद जब कोई हमारे साथ ज्यादती करता है, जब हम उसका बदला नहीं लेते, याकूब ने कोई बदला नहीं लिया था, खुद से कुछ नहीं किया था, है ना। तब खुदावंद जो है हमारी तरफ से हो के काले जंग करता है, हमारी तरफ से हो के उसके लिए खड़ा हो जाता है ना, उसकी फेवर के लिए खड़ा हो जाता है। तो याकूब का भी हम देख रहे हैं कि याकूब ने वफादारी से, ईमानदारी से उसकी भेड़ें चराई, है ना, उसके साथ धोखा नहीं किया। लेकिन लाबन जो था उसके साथ ज्यादती कर रहा था, उसके साथ धोखा कर रहा था। तो खुदावन कह रहा है कि देख, मैंने देखा है कि जो कुछ लाबन तेरे साथ कर रहा था। तो इसलिए खुदावन ने याकूब की भेड़ों को बढ़ाना शुरू कर दिया। जो भी उसने चुनी, खुदावंद ने उनको बरकत देना, उनको बढ़ाना जो था वो शुरू कर दिया। और खुदावंद उसको बरकत पे बरकत देता गया। और याकूब जो है वो मालदार, कह लें दौलतमंद होता गया। कि लाबन जो था वो उससे डरना शुरू हो गया, है ना। लाबन जो है वो उससे एक तो कह लें जेलस था या नहीं, लेकिन वो डरना शुरू हो गया कि इतना वो ताकतवर या इतना मालदार जो था वो हो गया था। आगे चल के हम देखेंगे ना। तो लाबन जो है वो उससे डरना शुरू हो गया। इसलिए खुदावंद जो है जब हमें बरकतें देता है, खुदावंद के लोगों को, तो लोग ना सिर्फ हमसे जलते हैं, बल्कि उनके अंदर एक डर और खौफ जो है वो पैदा हो जाता है कि ये तो बढ़ता जा रहा है, ये तो मेरे से आगे बढ़ गया, मेरे से कह लें अमीर हो गया। या रूहानी तौर पे अगर हम देखें, तो अगर हमारी जिंदगी में रूहानी नेमतें काम कर रही हैं, तो आसपास के लोग जो हैं उनकी ऊपर एक कह लें खुदावंद का खौफ या एक एक रोब और एक दबदबा। जैसे मिस्रियों को जब खुदावंद निकाल के लेके आया था, सॉरी इसराइलियों को, तो वहां पे आगे जब आते हैं, तो मुझे याद नहीं मेरा किसने कहा था, है ना, जो राहब थी शायद, है ना। तो उसने कहा था कि तुम्हारा जो रोब और दबदबा है वो छाया हुआ है, जब मेहयरों की दीवारें गिरानी थी, है ना। तो खुदावंद का खौफ या खुदावंद का रोब और दबदबा हमारे आगे आगे चलता है। वो लोगों को डराता है, वो हमें जैसे कह लें धोखा नहीं दे सकते, या हमें एक जैसे कह लें गिरा नहीं सकते, क्योंकि खुदावंद हमारे आगे आगे चल रहा है। जिस तरह खुदावंद याकूब के साथ साथ था, खुदावंद ने याकूब को हर लिहाज से बरकत दी। और खुदावंद के बंदे ने बड़ी जैसे कह लें खुदावंद की समझ से ये जो एक, जैसे हमने देखा कि जब बरकत के लिए रिबका ने याकूब को तैयार किया, कि जब बरकत इसहाक से लेनी थी, तो उसने कैसे तरीके से वो बकरी के जो क्या खाल थी इसकी गर्दन पे डाली, इसके बाजुओं पे, तो
उसने एक अपनी एक जैसे कह लें समझ से किया, लेकिन उसने भी क्या किया था उस वक़्त, खुदावंद ही की मर्ज़ी को पूरा किया था, कि खुदावंद के प्लान, मंसूबे को उसने पूरा किया था, कि खुदावंद जो चाहता था, या खुदावंद ने पहले ही याकूब को बरकत दे दी थी, माँ के पेट से ही उसको चुन लिया हुआ था कि ये जो है सरदार होगा, या ये हुकूमत करेगा अ, बड़े के ऊपर, है ना? तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि याकूब जो है, खुदावंद ने उसको बरकत दी हुई है। इसलिए जब उसने जिस्मानी तौर पे भी ये कोशिश की बकरियों को इस तरह से, कि मैं इस तरह से उनके इर्द-गिर्द ऐसे जैसे कह लें बाड़ जो है वो लगा दूँ, जब वो खुदावंद का जैसे कलाम जब हम लेते हैं तो वो क्या होता है हमारे अंदर, जैसे कह लें लिखा है कि तब कलाम जो है कह लें हामला हुआ, है ना? तो इसी तरह ये कलाम खुदावंद का जब उन्होंने लिया, या वो प्रेग्नेंट हुई या वो हामला हुई, तो तब जो है वो याकूब जो है उनके इर्द-गिर्द ये लगा देता था, ताकि क्या करें, ये जो कुछ भी देखें, जो कुछ सुनें, जो कुछ खाएँ, जो कुछ पिएँ, वो खुदावंद की मर्ज़ी से हो, या कह लें उसका मसा इनके ऊपर छाया रहे, ताकि ये इनकी फ़ितरत बदल जाए। ये मसीह की मानद बनती जाएँ, या जैसा खुदावंद चाहता है वैसा ये बने। तो उसने सारा इर्द-गिर्द जो कह लें जो भी बाड़ लगाई, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह हमारे चौगिर्द क्या है, वो बाड़ लगाता है। उसने हमारी मदद के लिए खुदावंद पाक रूह हमें दिया। हमारे चौगिर्द जो है फ़रिश्तों की कह लें पहरा जो है वो लगाया, ताकि क्या हो, हम खुदावंद यीशु मसीह की मानद बनते जाएँ। इसलिए ये सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, वो हमारी निगहबानी करता है। वो देखता है कि कौन-सी भेड़ जो है, इस वक़्त तैयार है, इस वक़्त ये इसको ये वाला खाना जो है देना चाहिए, इस वक़्त ये इसको पीना चाहिए, है ना? और वैसी वाली जैसे कह लें सख्त ग़िज़ा चाहिए, या अब इसको दूध पीना चाहिए, अब इसको ये उसको सब पता है। इसीलिए याकूब ने इन 3 दरख्तों की छड़ियों को मिला के वहाँ पे एक किस्म की कह लें, जब वो तैयार होती थी तो बाड़ जैसी जो थी वो लगा देता था। इसी तरह आपने कभी देखा होगा कि हम जब जैसे कह लें जब शुरू में मसीह में आए हैं, तो हमें एक कलाम जो है नरम-नरम कलाम जो है वो मिलता है। लेकिन जैसे-जैसे ही में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी हो सकता है कई दफ़ा जगह भी चेंज हो जाए। हमें जैसे मैं कहूँगी कि मैं अपना बताऊँ कि जैसे-जैसे मैं खुदावंद में मज़बूत होती गई, या खुदावंद में बढ़ने की, तो खुदा मुझे एक चर्च से दूसरे चर्च, जहाँ मुझे सख्त ग़िज़ा जो थी अ, वो मिलना शुरू हुई। तो खुदावंद हमारी जिस तरह हम रूहानी तौर पे तैयार होते हैं, वैसे-वैसे हमें रूहानी ग़िज़ा जो है, या रोटी या वो पानी जो है रूहानी, वो देना शुरू हो जाता है। इसी तरह याकूब ने भी उनके लिए पानी का और एक किस्म का कह लें कि रूहानी जो ग़िज़ा है, जो उसको इस पानी के अंदर मैं कहूँगी कि उसने मिला के जो कह लें कि एक पिलाई, और वो देना शुरू हो गया। पहले नहीं देता था, लेकिन जब वो हामला होती थी, तब जो है जब गाभन होती थी अ, तब उनको वो वाली ग़िज़ा देता था, ताकि अब ये जो है, ये वो ग़िज़ा इस तरह की लें, इस तरह के रूहानी तौर में मज़बूत हो जाएँ। इसीलिए लिखा है कि जो दुबली होती थी वो तो लाबान की होती थी, लेकिन जो मज़बूत ताकतवर होती थी, वो याकूब की होती थी। इसी तरह मैं और आप भी अगर खुदावंद में बढ़ना चाहते हैं, तो खुदावंद ने हमारे लिए सारा इंतज़ाम जो है वो किया हुआ है। जिस तरह याकूब क्या है वो मेहनत करता तो उसकी एक ही जैसे कह लें कह लें ख्वाहिश होती थी कि मेरी भेड़ें जो हैं वो सेहतमंद, तंदुरुस्त और जो भी उनकी खुराक है, उन पे वो ध्यान देता, हर बात पे ध्यान देता था। इसी तरह खुदावंद हमारा यीशु मसीह भी हमारी हर बात का उसे पता होता है। क्या मुझे इस वक़्त ज़रूरत है? किस चीज़ की ज़रूरत है? पानी की, रोटी की क्या पहनना है, क्या है ना?
तो खुदावंद यीशु मसीह को सब पता होता है। इसलिए वो ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी में ले आता है, ऐसे पास्टर हमारी ज़िंदगी में लेके आ जाता है जो हमें मज़बूत करते हैं, जो हमें खुदावंद में ताकतवर बनाते हैं और जो खुदावंद के हुक्मों पे हमें अमल करना सिखाते हैं। सख्त तालीम जो है वो हमें देना जो है वो खुदावंद ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है ना? जिस तरह ये छड़ी जो है यानी ये खुदावंद के सख्त कलाम को यानी खुदावंद की जो शरीयत है, खुदावंद की जो हुक्मों पे हमें अमल करना है, ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है कि हमें वो जैसे शायद आपने कभी इस पे गौर किया हो कि जैसे मैं कहूँ मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये तजर्बा किया कि हमारा जो बाप था वो बड़ा सख्त था। वो उसके कानून जो थे वो बड़े सख्त थे, ये नहीं करना, इतने बजे बाहर जाना है, इतने बजे घर आ जाना है और इस तरह के एक जो रूल थे, कानून थे वो बनाए हुए थे, है ना? और हमें वो करने पड़ते थे, चाहे हँस के करें, चाहे लड़ के करें, जैसे भी। तो जब शादी हुई तो बंदा होने लगा भी सख्त नहीं है ना? उसके अपने एक रूल थे, अपने कानून थे। पर ये क्यों हुआ? ये मैंने तजर्बे से सीखा है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए था। मेरे बाप ने कोशिश की कि मैं अपनी बेटी की हिफ़ाज़त करूँ, निगहबानी करूँ, किसी भी तरीके से इसको दुश्मन के हमलों से बचा के रखूँ। और जब मेरा हस्बैंड था, शौहर है, उसकी भी यही कोशिश है, क्योंकि वो रूल इसीलिए बनाए जाते हैं हमारी हिफ़ाज़त के लिए, हमारे कि कहीं हम बाहर निकलें तो दुश्मन जो है हमारे ऊपर हमला ना कर दे। इसी तरह जो खुदावंद रूल बनाता है या कानून बनाता है, वो हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। ये बाड़ जो है, जिस तरह याकूब ने कह लें लगाई, वो भेड़ों की हिफ़ाज़त के लिए थी, है ना? ये बाड़ जो है अगर हम इसको पार कर जाएँ, जैसे अब खुदा यीशु मसीह की लहू की बाड़ हमारे चौगिर्द लगी हुई है। हम खुद कहीं गुनाह करके, कहीं गलती करके, कोताही करके, नाफ़रमानी करके उसको तोड़ते हैं। जैसे आदम और हव्वा ने खुद मतलब उस बाड़ को कह लें हटा दिया तो वो रूहानी तौर पे मर गए थे, है ना? इसी तरह जब हम खुद अपनी मर्ज़ी से उस बाड़ को तोड़ के कह लो बाहर निकल आइए, तो हम दुश्मन के हमलों पे दुश्मन यानी हमारे ऊपर हमला कर देता है। लेकिन हमारा जो चरवाहा है या हमारे माँ-बाप जो हैं वो हमारे लिए हमारी हिफ़ाज़त के लिए ये छड़ी जो है, ये सख्त कानून जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वो हमें बचाना चाहते हैं दुश्मन के हमलों से। इसी तरह याकूब ने किया, इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने जो रूल बनाए हैं कि ये करना है, ये नहीं करना, है ना? नहीं तो हम क्या करेंगे? दुश्मन के हाथों में चले जाएँगे। तो इसलिए ये छड़ी जो है वो वहाँ पे लगाई गई, वो याकूब ने लगाई हमारी या उन भेड़ों की हिफ़ाज़त के लिए, है ना? ताकि अम, भेड़ें कहीं जो हैं वो अ, इसको पार करके दुश्मन के हमलों में ना चली जाएँगे, दुश्मन के हाथों में ना चली जाएँ। इसलिए जो माँ-बाप ने घर के रूल बनाए होते हैं, उनको हम ना तोड़ें या जिस चर्च में जाते हैं या इस कह लें ग्रुप में हैं, तो हम जो रूल बनाए हुए हैं उनको कभी ना तोड़ें, ये हमारी हिफ़ाज़त के लिए होते हैं। नहीं तो हम जो हैं, जब नाफ़रमानी करते हैं, जब अपने उस्ताद का या अपने माँ-बाप के हुक्मों को तोड़ते हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ते हैं, तो हम शैतान के हाथों में चले जाते हैं, है ना? तो इसलिए जो कुछ भी है, हमारी हिफ़ाज़त के लिए है। अगर खुदावंद छड़ी इस्तेमाल करता है, यानी कई दफ़ा कह लें गुस्सा होता है या ऐसे हालात आ जाते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो वो असल में हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं, है ना? अम, एक हवाला बस हम पढ़ेंगे यसाया 44 चैप्टर पढ़ना। ये बरकतें जो हैं तब हमारी ज़िंदगी में आती हैं जो याकूब की हैं, जब हम फर्माबरदारी में चलते हैं, ईमानदारी में चलते हैं और जो कुछ खुदा ने कहा है करते हैं तो उसकी वजह से हमें भी यानी बरकतें मिलती हैं और हमारे वसीला से हमारे चर्च को कह लें, हमारी फैमिली को बरकत जो है वो मिलती है। जी, अंजना पढ़ना। वर्ष जी, पहली आयत से वर्ष पढ़ना। पति पहली से 28 आयत। जी। हुण हे याकूब मेरे दास, हे इस्राएल जिन्हें मैं चुनिया सुनो।
ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਜਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਡਰ। हे सॉरी 1 ਯਾਕੂਬ मिनट। ਮੇਰੇ ਦਾਸ। हाँ जी, ये जब हम पढ़ रहे हैं पहली आयत से फिर पढ़ना, ये एक किस्म का आपने दो देखना है, ये खुदावंद मुझे कह रहा है ना? याकूब क्या है? अब हम हैं, इस्राएली कौम क्या है? अब हम हैं। जी पढ़ना। ਜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲॉर्ड। ਹੁਣ हे ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ, हे ਇਸਰਾਇਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ, ਸੁਣੋ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਸਾਜਿਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਡਰ। ਹੈ ਯਾਕੂਬ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਅਤੇ ਯਸ਼ੂਰਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੁੱਕੀ ਸੜੀ ਭੌਂ ਉੱਤੇ ਨਦੀਆਂ ਵਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਘਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਜਣਗੇ, ਵਗਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਂਤਾ ਵਾਂਗੂ। ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਦਿ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੌਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਰਥਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੀਤਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣ। ਨਾ ਭੈ ਖਾਓ, ਨਾ ਡਰੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਟਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਘੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕਟ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨਾ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਨੇ ਠਾਕਰ ਘੜਿਆ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਢਾਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਆਦਮੀ ਹੀ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਭੈ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਹਾਰ ਆਪਣਾ ਸੰਦ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਘੜਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਬਾਂਹ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਅਤੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਰਖਾਣ ਸੂਤ ਕੱਤਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੂਚੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਖਾਖਾ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਉਤੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਹੱਪਣ ਵਾਂਗੂ ਠਾਕਰ ਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦਿਆਰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੂ ਦਾ ਬਲੂਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਠਾਕਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਬਾਬ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮਾਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਸੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਆਹਾ ਮੈਂ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵੇਖੀ। ਉਹਦਾ ਬਕੀਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਠਾਕਰ, ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੱਥਾ ਰਗੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਠਾਕਰ ਜੋ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਆਖੇ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਬਕੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਿਨੌਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁੰਡ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜਾਂਗਾ। ਉਹ ਸੁਆਹ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛਲੀਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੇ ਯਾਕੂਬ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਅਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ, ਤੂੰ ਮੇਥੋਂ
ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਵਾਂਗੂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਵਾਂਗੂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੇ ਆਕਾਸ਼ੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਅਸਥਾਨੋਂ ਲਲਕਾਰੋ, ਪਹਾੜ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ। ਬਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦਾ ਸਾਜਣਹਾਰ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਨਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਪੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਢਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੇਵਕੂਫੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਵਚਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾ ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਖੋਰਸ ਵਿਖੇ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿਖੇ ਆਖੇ, ਉਹ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੈਕਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। प्रेज द ਖੁਦਾ ਦਾ लॉर्ड, ਖੁਦਾ प्रेज द ਦੀ लॉर्ड, ਤਾਰੀਫ ਹੋ, हालेलुया। ਪ੍ਰੇਜ਼ खुदा उनका ਲਾਰਡ। शुक्र, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी तारीफ हो। ये सारे वादे जो आज आपने पढ़े हैं, जो याकूब के साथ थे, ये सारे वादे मेरे और आपके साथ है कि हमारी सारी खताओं को, घटाओं को घटा की मानद क्या कर दिया है, हमारे गुनाहों को बादल की मानद मिटा दिया। हालेलुया। और जितने भी वादे हमने पढ़े हैं, इसलिए खुदावंद ने हमारी जो फितरत थी, हमारे जो एक गंद पुरानी इंसानियत थी, खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हम नए बन जाते हैं। दूसरा ग्रंथियो 4 बाब उसकी 6 और 7, ये सिर्फ आप बाद में पढ़ लेना। दूसरा ग्रंथियों 5 बाब 14 और 16 आयत, फिर दूसरा ग्रंथियों 12 16 आयत। ये सारी जो एक ये जो बादाम और ये हेजल नट जो क्या इसकी जो खूबियां हैं, यानी कह लें एक किस्म का वो रूहानी तौर पे तब पूरी हुई जब हम नई मखलूक बन के नए खुद हम यीशु मसीह में आ गए। तो ये उस तरह से रूहानी तौर पे हमारी जिंदगी में पूरी हो जाती है ना। तो इसलिए जो कुछ याकूब ने यहाँ पे किया है, वो खुदावंद की तरफ से किया, ताकि वो भेड़ें जो थी, वो जो कुछ वो पानी पी रही हैं, पानी भी हमें सबको पता है खुदावंद यीशु मसीह को पेश करता है ना। तो ये छड़ियों की जो एक खूबियां थी इनके अंदर, वो भी उसमें शामिल हो गई है ना। तो इसलिए खुदावंद ने ये तरीका जो है, कह लें खुदावंद ने उस तरीके से याकूब को बरकत दी। और आज मुझे और आपको भी खुदावंद, हम जो नकम्मे थे, हम जो नाचीज थे, हम जो बेवकूफ थे, हमें कोई अकल नहीं थी, कोई समझ नहीं थी, हमें चुना खुदा ने। जिस तरह इनके ऊपर ये जैसे जो भी दाग थे, धब्बे थे, झड़ियां थी, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह में आके वो कह लें रूहानी तौर पे खत्म हो गया। ये नहीं कि जिस्मानी तौर पे हम कोई लंगड़े थे या कुछ, वो भी हो सकता है, खुदावंद शफा वो दे सकता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक भेद या एक वो मिल जाता है कि हमें रूहानी तौर पे, जिस तरह उसकी भेड़े अंदर से उनका जैसे कह लें डीएनए जो था वो बदल गया था, उनकी फितरत जो थी बदल गई थी, है ना। तो इसी तरह हम भी जब मसीह में आ जाते हैं तो नई मखलूक बन जाते हैं रूहानी तौर पे, है ना। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की एक झलक जो है हमें वो याकूब की इसमें नजर आ रही है। तो इसलिए खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें अपने खुदा पे, खुदावंद यीशु मसीह पे पूरा ईमान है, भरोसा है कि जिस तरह याकूब अपनी भेड़ों की देखे फिक्र कर रहा है, उसकी हर जो काम था, जरूरी काम, वो उसने सब किया कि मेरी भेड़े जो हैं क्या खाएं क्या पिएं, जब वो यानी उसमें आ गई हैं। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह भी
एक-एक हमारी ज़रूरत को जानता है। रूहानी तौर पे इस वक़्त जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस्मानी तौर पे आपको, मुझे जो ज़रूरत है, वो सब जानता है। आप उसको बताएँ, ना बताएँ, उसको सब पता है, इसलिए फ़िक्र ना किया करें, किसी बात की। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि किसी बात की फ़िक्र ना करो, अपनी सारी फ़िक्रें मुझे दे दो, क्योंकि मुझे क्या है? खुदावंद ने कहा, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। हालेलुया! इसलिए कभी भी हम अ, अपनी फ़िक्रें खुद ही ना कंधे पे डाल के लेके फिरते रहें, खुदावंद के कदमों में रख दें। हालेलुया! क्योंकि खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा जो है, खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया! मैं ये छोटी-सी टाइम तो हो गया, लेकिन मैं बाथरूम में वो थोड़ा काम कर रही थी, तो एक जैसे कह लें मेरे दिल में ख़्याल आया बच्चों के लिए कि क्योंकि कुछ दिन पहले मेरा बड़ा जो बेटा है उसने ख्वाब में देखा कि हमारी जो छोटी यानी गाड़ी है, तो उसने देखा कि बॉक्स बन गई है। तो उसके ख्वाब बड़े सच्चे होते हैं, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी उसने ख्वाब देखा था, तो हमने जो सबसे पहले यहाँ पे आके गाड़ी ली कनाडा में, तो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो डब्बा बन गई थी, मतलब वो बाद में चल नहीं सकी। तो वो जो होते हैं क्या, उनको दे दी, है ना? तो मेरे ऐसे ही काम कर रही थी, ये सुबह ही की बात बता रही हूँ। तो मेरे दिल में ऐसे आया कि उसने ख्वाब देखा है, बेशक मैंने कैंसल कर दिया, उसने खुद भी और जावेद ने भी, लेकिन मेरे दिल में आया तो खुदावंद ने एकदम मुझे, यानी मेरे अंदर से आवाज़ आई, खुदावंद पाक ने कहा, "क्या तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है?" तो मैं एकदम से मैंने कहा, "नहीं, नहीं खुदावंद, मुझे तो खुदावंद को सब पता है। जो कुछ आप सोच रहे हैं, जो कुछ आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, खुदावंद पे खुदावंद ने मुझे कहा, मुझ पे भरोसा रख, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए खुदावंद जो आप किसी से कहते भी नहीं हैं, वो फ़िक्र भी उसको पता है। तो इसलिए खुदावंद पे हम हर, जैसे कह लें, हर बात के लिए भरोसा रखें, कोई भी है। तो खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, खुदावंद मुझे और आपको बरकत, ये याकूब की जो बरकतें हैं, मेरी और आपकी ज़िंदगी में फ़्लो कर रही हैं, और आगे भी और ज़्यादा फ़्लो करना शुरू हो जाएँगी, जब हम उस पे पूरा भरोसा रखेंगे। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम सनिया से खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए गवाही सुनेंगे। जी, सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र करते हैं आज के कलाम के लिए भी। और मेरी गवाही कुछ इस तरह है, जब हम मीटिंग के शुरू में हम बात कर रहे थे, मीटिंग स्टार्ट करने से पहले, तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मुझे ये शेयर करना चाहिए, ये कि मैंने इस ग्रुप में से खुदा ने मुझे ब्लेस किया है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं मतलब मेरी अम्मी को डिज़ायर होती थी कि वो कहती थी कि तेरे मतलब ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कभी बाइबल पढ़ी नहीं। मतलब मैं उनकी डिज़ायर थी कि मैं ना बाइबल रीड करूँ चर्च में। तो मुझे कभी मतलब ऐसे होता था कि मैं बहुत शाय पर्सन थी, मैं कभी किसी के साथ चर्च में भी किसी के साथ बात नहीं करती थी। मुझे शर्म आती थी कि हैं मैं ऐसे पढ़ूँगी। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब शर्म फ़ील करती थी, किसी के साथ कोई आता भी था तो ज़्यादा बात नहीं करती। तो मेरी नेचर इस तरह की थी। तो ऐसा हुआ कि खुदावंद ने जब मुझे चेंज किया है, मैं 2021 में खुदावंद ने मुझे मतलब किसी पास्टर्स ने नहीं ना किसी ने कहा, मुझे खुदावंद पाक रूह ने मेरे दिल में डाला कि मुझे बपतिस्मा लेना है। मैंने पानी का बपतिस्मा लिया, उसके बाद खुदावंद ने फिर मुझे मतलब मैं इस ग्रुप में आने से पहले कुछ महीने पहले खुदावंद ने ये जो मुझे पानी का बपतिस्म लिया मैंने। और मतलब उसके बाद खुदावंद ने जो है मुझे इस ग्रुप के साथ जॉइन किया 2022 में स्टार्ट में। तो ऐसा हुआ है कि खुदावंद ने इधर से ही मुझे बरकत दी, मुझे दुआ करनी मतलब इस तरह नहीं आती थी जिस तरह दुआ करते हैं। मुझे वो अम्मी लोगों से, अब्बू से जैसे सुनी कि रसूलों का अकीदा है हमारे बाप पढ़ी, अपनी नीडी प्रेयर जो थी कि मुझे ये दे दे खुदावंद, मुझे ये दे, मतलब इस तरह की दुआ करनी आती थी। फिर जब खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला, मैं इस ग्रुप में आई, सिस्टर शाहीन ने और इस ग्रुप में आई और खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग को, वो बरकतें रूहानी तौर पे
میں نے خداوند کی ڈیزائر رکھی تھی جب میں نے بپتسم لیا ہے، خدا پاک روح سے میں نے تبھی ڈیزائر رکھنا شروع کر دی کہ خداوند مجھے دے، مجھے پرووائڈ کر، کہ میں تجھے سیکھنا چاہتی ہوں، میں جاننا چاہتی ہوں. میں نے بائبل ریڈ خود ہی کرنا شروع کر دی تھی اس ٹائم 2021 میں. پھر خداوند نے جب مجھے ادھر ملایا تو میں خدا مجھے روحانی طور پہ تیار کرنا شروع ہو گیا. پھر میں اس گروپ کے لیے مطلب جب میں اس گروپ میں آئی، خداوند نے مجھے گیتوں کی بلیسنگ دی. اس کے بعد میں نے خود گیت لکھنا شروع کیے. حالانکہ مجھے تو اردو میں مطلب میں بالکل زیرو تھی، مجھے شاعری وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تھا. اس کے بعد پھر خداوند نے ایسا ایسا مجھے اور زیادہ بلیسنگ دی کہ میں اسی گروپ میں سسٹر نے مجھے مطلب پریزائڈنگ کے لیے خداوند نے چنا، اور وہ بھی خداوند نے ایک عجیب طریقے سے چنا کہ خداوند نے مجھے خواب میں مجھے دکھایا کہ مجھے اس طرح مطلب میں انوائنٹ ہوں گی. پھر سسٹر نے وہ مجھے جو بلیسنگ تھی، حالانکہ وہ کینیڈا میں پاکستان میں، خداوند میں نے اس انوائنٹنگ کو فیل کیا جس دن یہ میں بلیس ہوئی، میں انوائنٹ ہوئی پریزائڈنگ کے لیے. اس کے بعد سے خداوند نے 1 مہینے کے بعد میرے خواب میں میرے ساتھ مطلب میں نے دیکھا کہ میں نے 3 ڈور ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سیڑھیاں چڑھ گئی ہوں، میں 3 دروازوں کے اندر سے گزری ہوں. میں پریز دا لارڈ، میں خدا کا شکر کرتی ہوں. اور پھر ہمارے گھر پاسٹر آئے ہیں ملتان میں 2022 کی بات ہے، اس کے بالکل درمیان میں مڈ میں نا. تو پاسٹر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خداوند نے گائیڈ کیا کہ یہ بچی مطلب تو تیار ہے، تو چرچ میں سرمن مطلب دے نا، میسج دے. میں نے انکار کیا. میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتی نا، میں کیسے کر سکتی ہوں کہ میں نے تو کوئی سیمنڈری کچھ بھی نہیں ایسا پڑھا ہی نہیں، صرف بائبل میں ریڈ کرتی تھی. یہ اس گروپ سے جو سیکھ رہی تھی، خداوند مجھے تیار کر رہے تھے. تو ان پاسٹر کو گائیڈ کیا، میں نے انکار کر دیا. لیکن خداوند نے اسی رات میرے خواب میں آئے، جو یہ خواب بتائیے کہ میں 3 دروازوں سے گزری ہوں. تو پھر اس کے بعد خداوند نے اگلے دن میں نے روزہ رکھا. میں نے روزہ رکھ کے خداوند سے پوچھا، خداوند میری خدمت مجھ پہ واضح کر، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ یہ پیٹرن بھی میں نے اسی گروپ میں سے سیکھا، سسٹر شاہین سے سیکھا. پھر کیا ہے، میں نے خداوند سے جب پوچھا تو خداوند نے مجھے ورس دی یرمیہ میں سے کہ میں نے تجھے ماں کے پیٹ میں سے چنا ہے. Hallelujah. پھر خداوند نے پھر سے مجھ سے رات کو خواب میں پھر خداوند نے مجھے دکھایا کہ میں نے ایسے انگور جو ہیں وہ توڑ کے کھائے ہیں. میں نے وہ سسٹر سے بھی شیئر کی تھی خواب. اس کے بعد میں نے پھر پاسٹر صاحب کو کہا کہ ہاں میں تیار ہوں، میں کرنا چاہوں گی. تو پاسٹر صاحب کہتے پہلے آپ نے انکار کیا، لیکن اب آپ مطلب ایسے کرے. میں نے کہا میں نے خداوند سے پوچھنے کے لیے میں تیار نہیں تھی، میں نے خدا پاک روح سے پوچھا. پھر میں نے چرچ میں 7 نومبر کو چرچ میں پہلا سرمن دیا. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں، وہ لڑکی جس نے کبھی مطلب کسی کے سامنے دعا نہیں کی تھی، بائبل نہیں کبھی پڑھی تھی، چرچ میں میری ماں کی ڈیزائر ہوتی تھی، وہ نہیں کبھی کیا تھا کہ میں نہیں کر سکتی. لیکن خدا نے ایسے مجھے برکت دی اس کے بعد کہ میں پھر مسلسل 1 ویک چھوڑ کے چرچ میں ان چرچ کے لوگوں نے مطلب کہا، اس کلیسیا نے کہا کہ یہ سسٹر جب مطلب یہاں پہ میسج دیتی ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے ان کی. تو پاس صاحب انہیں مہینے میں 1 دفعہ موقع دیا کریں. اور جب تک میں ملتان میں رہی، میں خداوند کی خدمت کرتی رہی. خداوند نے وہاں پہ مجھے مطلب اپنی خدمت کے لیے یوز کیا. میں کچھ بھی نہیں، میں زیرو. خداوند کیا کہتے ہیں، کمزوروں کو، نکموں کو چنتا ہے. میں بالکل وہی تھی. اور خداوند نے مجھے زوراور بنایا اپنے زور سے. میں خداوند کا شکر کرتی ہوں. اور اس کے بعد جب میں راول پنڈی میں آئی ہوں تو خداوند نے پھر دوبارہ مجھے اسی طرح استعمال کیا. یہاں پہ بھی چرچ میں خداوند مطلب پاسٹر صاحب نے اسی طرح میں وہاں پہ بس پریئر کر رہی تھی تو پاسٹر صاحب نے پھر کہا کہ مجھے ادھر کے پاس آپ کو بھی خداوند نے گائیڈ کیا کہ اس بچی کو کیا کہ مطلب میں میسج دوں ادھر، مطلب پریزائڈ بھی کروں. اور خداوند نے مجھے یوز کیا ادھر بھی. اور میں کچھ بھی نہیں تھی. اور میں خداوند کا شکر کرتی ہوں کہ یہ خداوند کا زور، خداوند کی برکت ہے. اور میں نے اس گروپ میں سے سیکھا اور خداوند نے مجھے انوائنٹ کیا. اور میں اس کا شکر کرتی ہوں. یقیناً جب ہم خداوند سے پوچھ کے کوئی کام کرتے ہیں تو خدا اس کی بلیسنگ دیتے ہیں. ورنہ میں کہتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں بول پاتی تھی. آج جو کچھ بول رہی ہوں خداوند پاک روح کے زور سے ہے. ہاللیلویا، پریز Hallelujah. گاڈ. Praise the Lord. Praise the Lord. جی خداوند آپ کو بڑی برکت ہے. سنیا اور زیادہ بڑھائے، اور زیادہ خداوند کے لیے لکھیں، شاعری کریں، جس طرح سلیمان بادشاہ نے کی خداوند کے لیے، داؤد نے کی. خداوند آپ کو اور زیادہ گیت دیں اور برکت دے. خداوند ہم سب کو بھی. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا.